हेलो फ्रेंड्स। आप जानते हो कि अभी रेनी सीजन की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है और थोड़ा ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम वीडियो लेक्चर्स आपको सेंड कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको पता है हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे लाइव लेक्चर में, जिसमें हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इन टू डायमेंशन एंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स डिस्कस कर लिया था और रिलेटिव वेलोसिटी भी डिस्कस कर लिया था। नाउ इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक पेंडिंग है, वो डिस्कस करने हैं। वन इज अ यूसीएम, अदर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट वी डिस्कस यूसीएम। यूसीएम दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यूसीएम होता क्या है? यूसीएम, if any object move on a circular path with constant speed, word याद रखना, with constant speed, then its motion is known as uniform circular motion. किसे कहेंगे uniform circular motion? if particle move on circular path with constant speed, then such motion is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सपोज यहां पर हम एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जो ये आर रेडियस के सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। सपोज हियर वी ऑब्जर्व इट्स पोजीशन, इट इज r1, position at time t equals to 0. After some time we observe that particle reaches at this point. Initially it lie at point P. After some time it reaches at point Q at time t equals to t. That means its position vector is r2, represented by this. Now suppose this angle is theta, that means its angular displacement is theta. उसने थीटा जितना एंगल कवर किया t टाइम में। अब इसका स्पीड कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी, क्या स्पीड कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? नो, वी नो दैट स्पीड दैट मींस इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. If a speed is constant, then magnitude of velocity is constant, but direction continuously changes. As we know that direction of velocity is along tangential direction. That means at this point its velocity is along this direction, along the tangent. Suppose its velocity is a v1, and at this point its velocity is in this direction, which is a v2. So here v1 and v2 represent in figure, and it is the displacement. It is a displacement vector that is denoted by delta r. Now we want to derive that how velocity changes. How velocity changes. So here first of all we draw this triangle. It is similar vector of OP. It represent r1. आप सब जानते हो किसी भी वेक्टर को हम प्लेन में उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख के कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। दैट मींस ये वेक्टर को हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया। इट इज इक्वल वेक्टर OP r1. इट इज आवर अनदर वेक्टर which is at angle theta with r1. It is a position vector r2, and this vector is delta r. It is our delta r, and delta r is nothing but delta r is r2 minus r1. That is displacement, final position minus initial position. Now we have to decide change in velocity. change in velocity. So first we have to draw this vector.
this vector represent v1. It is equal vector of v1. Magnitude and direction are same. Consider this. Now we have to draw another vector, that is vector v2. That is vector v2. It is our v2 vector. And if we have to draw this vector drawn in such a way that tail lie at first vector and head lie at second vector, then it is known as delta v. आप देख सकते हो यहाँ हेड मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, माइनस यहाँ टेल मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा है इसलिए ये नेगेटिव आएगा. सो इट इज अ v2 माइनस v1 and this angle is obviously theta because angle between position vector of r1 and r2 is theta, so v1 and v2 का भी theta ही होगा. v1 directed in r1, v2 directed in r2. आप जानते हो दोनों रिलेट करता है, तो इस वजह से हम ये एंगल को भी थीटा एंगल कह सकते हैं. तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों ही ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है. इसे हम डिनोट कर देते हैं o डैश से. इट इज अ p डैश, इट इज q डैश. हियर वी नो दैट r1, r2 and r are equal in magnitude. अगर आप कहोगे पोजीशन वेक्टर r1 and r2 इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल. वेक्टर क्वांटिटी में वो दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है. बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दोनों ही वेक्टर इक्वल है और वो सर्कल की रेडियस इतने होंगे. सिमिलरली वेलोसिटी v1, v2 आर नॉट इक्वल but magnitude of velocity is same, that is speed, so it is represented by v. Now here we know that this triangles r1 and r2 magnitude wise same है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है. Similarly v1 and v2 magnitude wise same है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है. So side angle side postulate से आप कह सकते हो triangle OPQ is similar with triangle O dash, P dash, Q dash. Now here we use proportionality theorem. From proportionality theorem we can say that OP divided by PQ equals to O dash P dash divided by P dash Q dash. OP, that is this, it is a R1 and R1 is a R, so it is R upon PQ. PQ is a delta R इक्वल टू, हम मैग्नीट्यूड का डिस्कशन कर रहे हैं, O dash P dash, O dash P dash, that is V1. V1 is a V and P dash Q dash, P dash Q dash, it is a delta V. So here we can write that delta V equals to V upon R into delta R. डेल्टा V को सब्जेक्ट बना लिया और कुछ नहीं किया है. Divide by delta t both the side, then here we get delta V by delta t equals to V upon R delta R by delta t. Now here we consider that limit delta t tends to 0. That means टाइम इंटरवल को हम बहुत छोटा कर देते हैं. Then it is written as a dv by dt. आप ये अच्छे से जानते हो, जब लिमिट अप्लाई होता है तो डेल्टा डी में कन्वर्ट होता है, इक्वल्स टू v अपॉन r dr by dt. This quantity dv by dt, that is a differentiation of velocity with respect to time and it is an acceleration. Here this acceleration is known as a centripetal acceleration denoted by AC. It is a centripetal acceleration. Centripetal acceleration, which is denoted by AC. It is a v upon r and this dr by dt, it is a differentiation of position with respect to time, it is a v. So AC, it is a v square upon r. It is a v square divided by r. Why it is known as a centripetal acceleration? We know that direction of acceleration is along the direction of delta v. Acceleration और change in velocity same direction में होते हैं.
That means this is the direction of acceleration. If it is shown in this figure, then it is in this direction. It is the direction of acceleration. From this we can say that direction of acceleration is towards the center. From this we can say that direction of acceleration is towards the center of circle. So acceleration is known as centripetal acceleration. Sometimes it is also known as radial acceleration, because this direction is along the radius towards the center. So it is known as centripetal acceleration, otherwise it is known as radial acceleration. So here we derive one important formula, that is centripetal acceleration or radial acceleration, which is AC equals to v square upon r. अब इसके और भी फॉर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, डिराइव करने हैं, और उसके बाद इसकी डायरेक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लेंगे. ओके, नाउ वी डिराइव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन. हियर we observe that particle moves from P to Q. That is the angle theta. Suppose it move from P to Q in time interval delta t. Delta t. T time में जा रहा था, उसे delta t consider कर लेते हैं. Then this arc as a distance traveled by particle. So it's a speed, linear speed, that is a distance upon time. Linear speed is a distance by time. So here we can write that v equals to distance, that is a arc, upon time, that is delta t. We know that arc equals to angle into radius. Angle is a arc by radius. So arc equals to angle into radius. So here v is written as angle into radius. Angle, it is a theta, और डेल्टा थीटा, से डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इंटू आर. आप देख सकते हो मैंने आर्क को रिप्लेस कर दिया एंगल इंटू रेडियस से, अपॉन डेल्टा टी. इफ हियर वी कंसीडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कंसीडर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, then v is written as d theta upon dt into r in this way. और आप ये अच्छे से जानते हो, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, इट इज एंगुलर स्पीड. सेकेंड चैप्टर में आया था एंगुलर स्पीड, which is represented by omega. So here we derive that v equals to r omega. V equals to r omega. It is the relation between linear speed, that is v, and angular speed, that is omega. उन दोनों के बीच का रिलेशन है. Now use this equation and centripetal acceleration. So centripetal acceleration, that is AC equals to v square is replaced by r omega. So it is a r square omega square upon r. So another form of centripetal acceleration is a r omega square. It is r omega square. Sometimes instead of omega we have to put 2 pi f, but we discuss later on in chapter 7. So आपको ये दो फॉर्म ही एट प्रेजेंट याद रखने हैं. वन इज अ v स्क्वायर बाय r, अदर इज अ r ओमेगा स्क्वायर. अब आपने जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन डिस्कस किया या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया, उसमें कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसे आप नोटवर्थी पॉइंट्स कह सकते हो? नोटवर्थी पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड
of velocity, constant. Second point, speed constant, that means kinetic energy, that is a half mv square, in which m is a mass and v is a speed, is also constant. That means change in kinetic energy is zero. Change in kinetic energy is zero. Third point, velocity continuously changes because direction of velocity changes. Direction of velocity changes. आप जानते हो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी में चेंज तीन वे से हो सकता है. बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग डायरेक्शन, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसी मोशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है. दैट मीन्स बाय चेंजिंग डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस. नाउ फोर्थ पॉइंट, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. Which is directed towards center along the radius is AC equals to V square upon R, in which V is a speed and R is a radius. It is a constant. So centripetal acceleration is constant, but constant in term of magnitude. Magnitude wise constant. Direction of centripetal acceleration changes by its tail. Most important fifth point है बेटा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा. ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. तो यहां मैंने ये रॉन्ग लिखा है ना, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चेंजेस. नो बेटा, उसका हेड ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा. दैट मींस अगर आप इस यहां पर इन दोनों पॉइंट के पास बात कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में आएगा वो, टुवर्ड्स द सेंटर. अगर आपने यहां पर दो पॉइंट ले लिए तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर. यहां पर आपने अगर कोई दो पॉइंट ले लिए ये वाले तो यहां पे आएगा. यहां पे अगर कोई दो पॉइंट ले लिए तो यहां पे आएगा. तो आप देख सकते हो कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ऐसा वेक्टर है जिसका टेल मूव हो रहा है. ज्यादातर वेक्टर के केस में क्या होता है? हेड मूव होता है. इस केस में क्या हो रहा है? टेल मूव हो रहा है और हेड फिक्स है. कहां पे हेड फिक्स है? सेंटर पे. तो यहां पर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है बाय चेंजिंग इट्स टेल. टेल की पोजीशन चेंज होने से ये चेंज हो रहा है. तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया. अब उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के डायरेक्शंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो यहां पर फिफ्थ पॉइंट जो है वो आप एक बार फिर से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फिफ्थ पॉइंट, that is the direction of centripetal acceleration changes by its tail. ओके, वीडियो स्टॉप करके पहले हम कॉपी कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑलवेज सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं. और आपके माइंड में ये अच्छे से अब क्लियर हो चुका है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर पूछा जाए तो हम आंसर देंगे इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी सेम ही होते हैं ना. नहीं होते हैं बेटा. अब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन हम रिलेटिवली डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें तीन केस है. फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड
मोशन, दैट मीन्स ऐसा मोशन कि जिसमें कंटिन्यूअसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर आपने अपने व्हीकल को एक्सेलरेट किया है तो उसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। जब वो दोनों पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं डिसेलरेटेड मोशन। What do you mean by decelerated motion? किसे कहेंगे हम decelerated motion? Decelerated motion that means अगर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया उससे जो मोशन होती है उसे हम decelerated motion कहते हैं, जिसमें कंटिन्यूअसली स्पीड वेलोसिटी कम होता है। इस केस में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट होते हैं, बट है पैरेलल। इसे भी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, इसे भी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। यस, ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, पर पैरेलल का ही टाइप है, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो इन केस में होता क्या है, इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इस केस में क्या होगा, इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। Now third case, that is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी अभी हमने देखा कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है और वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। एंड वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ही ऐसा केस है जिसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है और रेडियस एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मींस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये ऐसा केस है कि जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity is constant but direction changes, इसे अच्छे से नोट करो बेटा कि जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तब डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बट मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इसमें भी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बट अगर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन चेंज होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पैरेलल कंपोनेंट चेंज मैग्नीट्यूड, parallel component change magnitude and perpendicular component change direction, perpendicular component change direction। ये तीनों पॉइंट्स आपके बोर्ड लेवल में है। नाउ इसमें हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मीनिंग क्या होगा, सर्कुलर या कर्व्ड मोशन लिख देते हैं क्योंकि इसमें कर्व्ड भी केस आ सकते हैं और सर्कुलर मोशन को कर्व्ड मोशन कह सकते हो, सारे कर्व्ड मोशन को सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म कर्व्ड मोशन एक ऐसा केस है जिसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों के बीच कुछ एंगल फॉर्म होता है, कुछ एंगल फॉर्म होता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ 90 था, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 180,
ये जीरो एंगल है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जीरो, हियर एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी 180, ये 90, यहाँ पे थीटा एंगल होगा। ऐसा मोशन जिसमें कर्व्ड हो और प्रेडिक्टेबल ना हो, इस टाइप का मोशन, और उसमें स्पीड भी उसकी कांस्टेंट नहीं हो, मतलब चेंज हो रही हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही वेलोसिटी का चेंज होगा। आपने देखा कि मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा था, जैसे मैंने नॉन यूनिफॉर्म वर्ड लिखा तो इसका मीनिंग क्या है? स्पीड का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा। दूसरा डायरेक्शन चेंज हो रहा था क्योंकि कर्व्ड मोशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सेलरेशन के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, आपको अच्छे से पता है पैरेलल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट लेना चाहें तो ए का पैरेलल कंपोनेंट आएगा, जनरली आप उसे ए एक्स से डिनोट करते थे, यहां मैंने उसे ए पैरेलल से डिनोट किया है, और इस केस में वो हो जाएगा ए कोस थीटा। कंपोनेंट लेना आपको आता है, जहां थीटा फॉर्म होता है वहां कोस आता है। और यहां पर जो कंपोनेंट आएगा जिसे आप y कंपोनेंट लिखते थे, उसे मैं लिख रहा हूं ए पैरेलल, ए परपेंडिकुलर, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा इसका a sin थीटा। दैट मींस यहां पे हमें दो कंपोनेंट मिले, वन इज a पैरेलल, अदर इज a perpendicular. Here a parallel component as a responsible for change in magnitude of velocity. It is responsible for change in magnitude of velocity. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पैरेलल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूजफुल होगा। तो इस तरह से अगर आप ऐसे किसी मोशन को डिस्कस कर रहे हो जिसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों के बीच का कुछ एंगल हो और उसका कुछ मेजरमेंट हो, वो 0, 90, 180 नहीं हो, इसके अलावा का कुछ वैल्यू हो, तब ऐसे केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। अगर आप दोनों के बीच 90 डिग्री वाला केस डिस्कस कर रहे हो, ऐसा केस डिस्कस कर रहे हो जिसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो वो एक ही केस हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी। बाकी डिसेलरेटेड मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसको वो तो पहले से ही आप जानते हो। तो ये बातें जो है वो अच्छे से कॉपी करके, लर्न करके कॉपी करना, और उसके बाद इसके नोट्स जो है वो मुझे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।